हुकूमत हम करेंगे, इस पे हुकूमत हम करेंगे, इस पे हुकूमत हम करेंगे। ये वतन हमारा है, ये वतन हमारा है, ये वतन हमारा है, ये वतन हमारा है, ये वतन हमारा है। इसकी खातिर हम लड़ेंगे, इसकी खातिर अब हर फर्द बनेगा, अब हर फर्द बनेगा, बच्चे भी बनेंगे, मकबूल हमारा, ये बच्चे बनेंगे, ये बात बनेगी, आवाम बनेगी, ये घर बनेंगे, कमजोर लगा लो, कमजोर बचा लो, हम चीज करेंगे, इस बार लेंगे, छोड़े ताकि मेहमान यहाँ पे बैठ सके। होकर फरमाया कि ऐ रसूल, आप कहते हैं कि ऐ काफिरों, मैं इसकी इबादत नहीं करूंगा जिसकी इबादत तुम करते हो, और ना तुम इसकी इबादत करने वाले हो जिसकी इबादत मैं करता हूँ, और ना मैं कभी इसकी इबादत करने वाला हूँ जिसकी इबादत तुम करते थे, और ना तुम उसकी इबादत करने वाले हो जिसकी इबादत मैं करता हूँ। तुम्हारे लिए तुम्हारा दिन और मेरे लिए मेरा दिन। सामीन मोहतरम, आज के इस अलवला अंगेज और गैरत निशान जलसा की सदारत शहीद कश्मीर मकबूल बख्श की तस्वीर दादम तस्वीर से कराई जा रही है, जबकि मेहमान खुसूसी जम्मू कश्मीर नेशनल स्टूडेंट फेडरेशन के मरकजी चीफ ऑर्गेनाइजर जनाब मोहम्मद इस्माइल मलिक साहब है। जनाब इस्माइल मलिक साहब। साधु पेंटर साहब, शाहिद अहमद पेंटर साहब। तेरी गलियों पे है वतन के जहां चली है रस्म के, कोई न सर उठा के चले निसार में। तेरी गलियों पे गराज तुझसे जुदा है तो कल मिलेंगे हम, गराज तुझसे जुदा है तो कल मिलेंगे हम। ये रात पर की जुदाई को कोई बात नहीं, ये चार दिल की बुदाई तो कोई बात नहीं। बहुत बरूर से जालम जिसे मना के चले निसार के, कोई न सर उठा के चले निसार में। तेरी गलियों पे लगी है तेरी मुहब्बत में घूमते क्या क्या, लगी है तेरी मुहब्बत में घूमते क्या क्या। जो तुझको चाह तो गोया बड़ी खता की है, बहुत कसूर किया है अगर वफा की है, कि हम पे तीर हर के दुश्मन वफा के चले निसार में। तेरी गलियों पे है वतन के जहां चली है रस्म के, कोई न सर उठा के चले निसार में। तेरी गलियों पे आप मैं असलम मिर्जा साहब से गुजारिश करूंगा कि वो NSF के जो लड़के सीज फायर तोड़ने के लिए मुजफ्फराबाद रवाना हुए हैं उनके नाम पुकारे। मेरे पारा देश के मशहूर साधु दोस्तों और मुस्लिम कश्मीर के मुस्लिम लोगों, NSF ने 25 साल से धरती माता की आजादी के लिए सियासी जदोजहद कर रही थी, लेकिन अब एक मुकाम आ गया था कि NSF अमली कदम उठाए
NSF نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ 11 فروری شہید کشمیر مقبول بٹ کی چھٹی برسی کے موقع پر کوٹھی کے مقام سے جو کہ مظفر آباد میں ہے وہاں سے سیز فائر لائن توڑیں گے. تو ہمارے یا کوٹھی سے جو دوست گئے تھے ہم نے ان کے نام بتانے ہیں, لیکن کچھ ہمارے دوست کچھ NSF کے سرس پہیا سے بھی ہیں جنہوں نے ہمیں سختی سے منع کیا تھا کہ ہمارے نام کسی کو نہ بتائے جائیں کیونکہ ہم اپنے وطن کے لیے جا رہے ہیں. جو کچھ بھی ہوا ہم اس کا سامنا کریں گے. جن دوستوں کو میں نام بتا رہا ہوں, اس کے علاوہ ہمارے 10 دوست ایسے ہیں جنہوں نے ہم سے یہ کہا تھا کہ ہم ان کے نام نہ بتائیں. تو سب سے پہلے محمد انذار صاحب تعلق پورتی سے ہے, NSF کے کارکن ہیں, سیکنڈ ایئر میں پڑھتے ہیں کالج میں, NSF کے سیکنڈ ایئر کارکن ہیں. محمد ادریس عبدل غنی کلاس چوکی سے, محمد شبیر باب حسین چلیر کالونی سے, ہمایوں عظیم چودھری اور محمد عظیم چودھری شوقیمون ذوالفقار ملک بھی ہیں. NSF کے سابق مرضی ڈپٹی چیف آرگنائزر بھی ہیں, ان کی قیادت میں یہ سب دوست گئے ہیں. محمود اسرار اور اس کے علاوہ ہمارے 10 دوست اور ہیں جنہوں نے ہمیں یہ کہا تھا کہ ہم ان کے نام نہ بتائیں. اس کے بعد کل سے ہماری یہ اناؤنسمنٹ ہو رہی تھی, آج کے چیف گیسٹ پاکستان قومی محاذ آزادی اور سابق وفاقی وزیر معراج خان ہوں گے. دوستو, آج وہ اس وجہ سے تشریف نہ لا سکے. اسلام آباد میں حکومت آزاد کشمیر نے آل پارٹیز کانفرنس بلائی ہے جس میں وہ تشریف لے گئے ہیں اور 3 بجے وہ یہاں کوٹلی آ جائیں گے. شام کو مشرق بردار جلوس نکالا جائے گا. قومی آزادی کے غاصب کے ہاتھوں مقبول بٹ کی پھانسی نے نہ انہیں صرف ایک رتبہ شہید عطا کیا بلکہ وہ دنیا بھر کی مظلوم قوموں کے ہیرو بھی ٹھہرے. شہید وطن مقبول بٹ کا سر مرتے دم بھی قاتلوں سے اونچا رہا. شہید وطن کو جب یہ پتا چلا کہ آخری دن ان کے بھائی کو ان سے ملنے نہ دیا گیا تو انہوں نے کہا کہ میں آج کے بعد تم لوگوں میں موجود رہوں گا, ان لوگوں میں جو میرے متعین کیے ہوئے راستے پہ چلیں گے. زندہ ہے مقبول کے سارے, زندہ ہے مقبول کے سارے, زندہ ہے مقبول کے وارث, زندہ ہے مقبول کے وارث. ہے مولا, ہے مولا, ہے مولا, ہے مولا. کون رنگ لایا ہے انقلاب آیا ہے, کون رنگ لایا ہے انقلاب. بچیں گے بچیں گے بچیں گے. لیکن آج ہم سب اس کو دیکھ رہے ہیں. ہم یہ کیسے یقین کر لیں کہ کوئی چاند اور سورج کی روشنی چھین سکتا ہے. مقبول بٹ کو ہر طرف سے دستوں کے پتھر بسائے گئے, انہیں ایجنٹ ہونے کا الزام دیا گیا. لیکن دوستو, یہ پتھر بھی پرانے ہیں, یہ ہاتھ بھی پرانے ہیں, یہ سر بھی پرانے ہیں. لیکن تاریخ کے اوراق پلٹ کر دیکھیے کہ پتھر مارنے والوں کا قبیلہ کون سا تھا اور پتھر کھانے والوں کا قبیلہ کون تھا. اور جنہوں نے پتھر کھائے ہیں ان کے جسم سے اتنا خون بہا کہ نالین مبارک لو نہ ہو. عدل کی طرح آج بھی 2 گروہ موجود ہیں, ایک حق اور سچائی کا گروہ, ایک حق اور سچائی کا گروہ جو کشمیر کی آزادی کا دائی ہے اور اس کی خاطر قربانیاں دے رہا ہے, اور دوسرا ابو جہل کا گروہ جس کا کام اسے پتھر مارنا ہے. لیکن آج وہ یاد رکھیں کہ شہید کشمیر مقبول بٹ کشمیری بچے بچے کے دل میں سما گیا ہے. وہ مقبول بٹ جسے بھارت نے
किसी कोने में छुपाने की कोशिश की थी, आज वो करी कुछ में निकल आया है। मकबूल बात कसम है आजादी की, हमें तुम्हारे मकसद से जो अलम मिले वो अलम उठाकर हम तुम्हारे पीछे बड़ी जरूरत बड़ी मजबूती के साथ ये कदम गुरु के भी है, जोड़ों के भी है और बच्चों के भी है, ये पहाड़ों के ऊपर बादलों के बीच और देवों के साथ चले आ रहे हैं। कसम है आजादी की, आज गुरु के किनारे किसी की सोच खत्म हो गई है और हमारा के चश्मे उबल रहे हैं। अब तराना के लिए मनीर बिन सौफ। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपकी खिदमत में मकबूल बख्श शहीद का पैगाम अहले कश्मीर के नाम पेश कर रहा हूँ। इश्क की मंजिल सर करके हम दे के हम कान चले, शम्मा आजादी पर अपनी हम जान को कर कुर्बान चले। के आगे पाकिस्तान की चलती नहीं, ताहूती ताकत के किस्म का तोड़ है सोच, जानी कुर्बानी के बगैर कोई बात बनती नहीं। बादे शुमार क्या देना कश्मीर के गुलामों को, चिरब दस्तों तर दिमागों नाजर गुल अंजामों को। आजादी है कश्मीर का डंग, फिकत है गोरीला जंग, अभी से सोच लो अपनी अपनी संसामों को। इधर उधर गद्दार बनो तो फिर ना जानबदार बनो, बागी हुक्मरान बनो सरकार खुद मुख्तार बनो। कल कश्मीर आजाद हो जाए तो जज्बाए हुकूमत से सोच में पाकिस्तान के पट्टे जानकार बनो। ये नहीं तो जात की खातर 80 लाख इंसानों की फौज सफर मौत बनाओ खालिस मुसलमानों की। इधर उधर के रुई टहल कर सोच, मौका है ऐलान करो, कश्मीर बनेगा खुद मुख्तार आवाज हो एक जबानों की। कुछ नहीं तो कह चला कश्मीर के मस्कीनों को, मकबूल बात कबूल नहीं तो चूम लो संगीनों को। लतीफ साहब से गुजारिश करूंगा तो स्टेज पर तशरीफ ले आए। जनाब मलक लतीफ साहब, इस तट से कोई मक्तल की जानब कब गया, ऐ मेरे मकबूल तेरी खाक के पैर हराम थी, आंख में जिंदा चमक उठी हुई सुए फलक, मैं हारत का तेज जफा हराम थी। अब मैं आज के सबसे पहले मुकर्रर जम्मू और कश्मीर नेशनल स्टूडेंट्स फेडरेशन के हुर्रियत पसंद और सदर यूनिट और पहला यूनिट के सदर जनाब मलक सादक सुभानी साहब से गुजारिश करूंगा तो स्टेज पर तशरीफ लाए। जनाब मलक सादक सुभानी साहब जो मुस्लिम के नुमाइंदे थे, गुलाम महकूम मजबूर कश्मीरी कौम का माशरती मसावत का दाई व कायद आज हमें मौजूद नहीं। वो आपका कायद था, वो मेरा कायद है, वो मेरा मंशूर है, वो हमारी कौमी आज़ादी और खुद मुख्तारी का सबसे बड़ा मीनार और कश्मीरी मुसलमानों, हिंदू, बुद्ध मत, सिखों की उमंगों, आरज़ू और दुख दर्द का तर्जुमान था। आज उनका नाम हमारे लिए सोच यकीन की ललकार है। वो दिल तोड़ने वालों के सरबत और इक़्तिदार से कभी नहीं डरे, बल्कि अंधेरे के पुजारियों ने शब मारने के बाद जो नकाबी ओढ़े, मकबूल बात ने इनको नौशा फेंक दिया। उनकी कुर्बानी मरूब कुन हालात की पैदावार नहीं, उनकी कुर्बानी मरूब कुन हालात की बैसाखी लगा कर नहीं हुई। वो समाजी नाइंसाफियों के खिलाफ एहतजाज करते थे। मकबूल बात अंधेरे में उजाले की किरण बनकर उभरे। इसी उजाले की सुर्ख रोशनी में आज कश्मीरियों ने लूट खसूट के राज को तहवाला करने की ठान ली है। अब वक्त ने करवट बदल ली है। अब वक्त के पुजारियों के लिए मुमकिन नहीं रहेगा
क्योंकि कश्मीरियों की किस्मत का सौदा गैर मुल्कियों के हाथ में। 2-3 मिनट में करें। अपनी आंख का तारा वादी अपनी शहजादी है, इसका शहदा आलम सारा। धरती माँ जम्मू और कश्मीर की गैरत और हमीयत के मतवालों, मियाँ मनीर हुसैन, मियाँ मनीर हुसैन। मैं शोहदाए कश्मीर को खराज अकीदत पेश कर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमान अर्रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़्दूबि अलैहिम वलद्दालीन आमीन। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद सहाबे सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद। मेरे परवरदिगार आलम, जो कुछ हमने यहाँ टूटे फूटे अल्फाज में ये कलमात अदा किए हैं मौला, मेरे मौला इन तमाम मजमे की वसासत से जनाब तेरे और तेरे हबीब की खिदमत में पेश कर दे, इसको कबूल व मंजूर फरमा। मौला करीमा अपने हबीब के सदके खसूस बिलखसूस शहीदान करबला की खिदमत में पेश करते हैं, इसको कबूल व मंजूर फरमा। मेरे मौला करीमा खसूस बिलखसूस मकबूल बट शहीद और शहीदान कश्मीर की खिदमत में पेश करते हैं, इसको कबूल व मंजूर फरमा। मौला करीमा आज तेरी इस धरती के नौजवान जिस जज्बे के साथ इस स्टेज पर तशरीफ लाए हैं, जिस जज्बे के साथ उन्होंने इस तारीख को चलाया है, इस तारीख को आज़ादी की नियामत से माला माल फरमा। कौन से है आज़ादी की नियामत से आपके कश्मीरी भाई जो है, आपके फलस्तीनी भाई जो हैं, वो इनसे लुत्फ़अंदोज़ नहीं हो रहे हैं। उनको कब कदर है इस बात की कि कश्मीर में क्या हो रहा है और फलस्तीन में क्या हो रहा है, आज़ादी क्या चीज़ है। दोस्तों, मैं वैसे यहाँ मुझे एक शेर याद आ गया, नुक्ता चीनी पे मेरी तुम इतने पर गुज़िश्ता न हो, नुक्ता चीनी पे मेरी तुम इतने पर गुज़िश्ता न हो, क्या दिया जो दिल में था लेकिन कभी साजिश न की। दोस्तों, आप लोग जिस अज़म के साथ यहाँ बैठे हुए हैं, तरबियत के रखवालों और आज़ादी के मतवालों, अब मैं कौमी महाज आज़ादी के गुलाम मुर्तज़ा साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि वो स्टेज पर आकर अज़हार ख्याल करें। दबा सको तो सदा दबा दो, बुझा सको तो दिया बुझा दो, सदा दबेगी तो हश्र होगा, दिया बुझेगा तो सहर होगी। मेरे अजीम कश्मीर के अजीम फर्जंदों, आज हम यहाँ तारीख के उस अजीम मुजाहिद को खराजे तहसीन पेश करने के लिए हाजिर हुए हैं, जिसका नाम है मकबूल भट्ट। मकबूल भट्ट हमें वो रास्ता दिखा गया है कि जो आज हमारी आज़ादी की मंजिल के करीब तर पहुंच चुका है। मैं मकबूल भट्ट के हालात जिंदगी तो बयान नहीं करूंगा, मगर ये बयान करना जरूरी समझूंगा कि वो क्या जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है, भट्ट को ये रास्ता करना पड़ा, जिंदा है, जिंदा है, क्यों अपनाए, जिंदा है। मेरे अजीम दोस्तों, याद करो 1931 का वो वक्त जब कश्मीरी आजादी पसंदों ने अपने सीनों पर गोलियां खाई और पाकिस्तान की तारीख आजादी शुरू होने से कबल भी तारीख आजादी कश्मीर की बुनियाद रख दी। हम ये फख्र से कहेंगे कि पाकिस्तान की बुनियाद कश्मीरियों के खून से रखी गई। पहले तारीख कश्मीरियों ने, उसके बाद 1947 का मौका आ गया जब बड़े सगीर को तकसीम कर दिया गया। वहां भी कश्मीरियों ने जो उस वक्त का नजरिया था, तो कौमी नजरिया, वो उस वक्त की जरूरत थी, उसके मुताबिक अपनी तहरीक जारी रखी। जो साजिशें भी हुई, जो हालात भी हुए, आप मुझसे बेहतर जानते हैं। नतीजा क्या निकला? नतीजा यह निकला कि कश्मीर के 2 नहीं 3 नहीं बल्कि 4 टुकड़े हो गए, एक इधर एक उधर। उस वक्त हम मानते हैं कि जरूरत थी तो कौमी नजरिया की। उस वक्त
मुसलमान अपना हक मांगते थे, अपनी आजादी मांगते थे, मगर मेरे दोस्तों वक्त सबसे ऐसी चीज है कि जो बहुत कुछ सिखाता है और कौमों को अपनी सनत के तयन में मदद देता है। वही पाकिस्तान, मशरकी और मगरबी पाकिस्तान, जो दो कौमी नजरिए पर कायम हुआ, एक अरसा के बाद उस बंगाली ने क्यों महसूस किया कि इस नजरिया में मेरी बका नहीं है। आज अगर वो हमसे अलग हो गया है तो उसकी मुसलमानी में कोई फर्क पड़ा? नहीं पड़ा। मगर वक्त की जरूरत ये हो गई कि उसने महसूस किया कि जिस मकसद की खातिर मैंने पाकिस्तान हासिल किया था, आज मुझे भी वहाँ वो हुकूक नहीं मिले हैं, आज वहाँ भी मैं उसी तरह मजलूम हूँ। तो उसने क्या किया? हालात आपके सामने हैं। दुनिया में कहीं भी जमहूरियत हुआ है तो वहाँ तब्दीली जरूर आई है, और कश्मीरियों में तब्दीली क्यों ना आती? एक वक्त था कि कश्मीरी कहते थे कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, उस वक्त की जरूरत हुई होगी, मगर हम देखेंगे 1947 के बाद क्या हालात हुए। कौमों के रहनुमा तयन करते हैं कौमों की समझ का कि वो कौन को किस तरफ लेके जा रहे हैं। हमें दो किस्म के रहनुमा मिले हैं, एक सियासी रहनुमा और एक हुर्रियत पसंद रहनुमा। सियासी रहनुमाओं ने हमें कौन सा किबला दिखाया? सियासी रहनुमा 45 सालों में हमें कहाँ ले गए? उसी तरफ कि कश्मीर के मसले को कौम मुत्तहिदा में उठा। कौम को कभी आजादी नहीं मिली, कभी आजादी नहीं मिली। खून रंग लाएगा, इनकलाब आएगा, खून रंग लाएगा, इनकलाब आएगा। कभी वो भी हुर्रियत पसंद कहलाते थे, कभी फख्र था कौम को कि उन्होंने गोली चलाई है, कोई मुजाहिद अव्वल बना है, कोई गाजिया मिल्लत बना है, कोई कुछ बना है, कोई कुछ बना है। मगर वक्त के साथ उन्होंने क्या समझौता किया है? यही कि कौम को बुज़दिली का रास्ता दिखाया है। आज वो लीडर शायद अवाम में जाकर वो बात महसूस न कर सके जो हम तुलबा, हम नौजवान एक आम आदमी की जुबान से सुनते हैं। जब हम अपने कॉलेजों में जाते हैं, जब अपने यूनिवर्सिटियों में जाते हैं और हमें दोस्तों के साथ बातें होती हैं, आया है कश्मीरियों ने अपनी आजादी के लिए क्या किया है? बस यही कहते हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा में मसला उठाओ। अक़वाम मुत्तहिदा क्या करे? पिछले दिनों आपने अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी का बयान पढ़ा होगा। जनरल सेक्रेटरी एक अदारे का ये कहता है कि मैं अपना किरदार अदा नहीं कर सकता, इसलिए कि इंडिया कहता है कि कश्मीर मेरा अंदरूनी मामला है। जब अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी को नहीं पता कि कश्मीर का मसला क्या है, तो वो खाक कश्मीरियों का मसला हल करेगा? कुछ भी हल नहीं करेगा। तो यह वक्त है मेरे भाइयों कि जिसमें आपको यह फैसला करना है कि कश्मीर का मसला कश्मीर के बेटे हल करेंगे, तेरी सोनी मिट्टी चाहत का इजहार करेंगे। आप मैं खिताब के लिए दावत देता हूँ जनाब मलक सलीम एडवोकेट साहब से कि वह मुख्तसर अल्फाज में अपने ख्यालात का इज़हार करें। कामयाबी और कामयाबी से हमकरार होती है और तारीख शायद है कि हमारी रियासत जम्मू और कश्मीर की तारीख में जनाब मकबूल बख्श शहीद ने अपनी जान का नजराना पेश करके जो तारीख रकम की वो हमेशा के लिए तारीख के दामन में महफूज है। जनाब मकबूल बख्श शहीद अजीम कश्मीरी उनके पसंद थे और उनकी जलाई हुई शम्मा आज आप देख रहे हैं कश्मीर, मकबूजा कश्मीर, आज़ाद कश्मीर, पाकिस्तान वो सारी दुनिया में उसकी किरणें अब महसूस की जा रही हैं। दोस्तों और भाइयों, अब जो सूरत हाल है जो उनका नजराना पेश करना कोई बड़ी बात नहीं। मकबूल बात रसूल है कश्मीर की आज़ादी की, जो अलम हमें तुम्हारे मकसद में मिले हैं वो अलम हम उठाकर तेरे पीछे पीछे चले आ रहे हैं। हमारे कदम आहिस्ता आहिस्ता मगर पूरी जरत और पूरी मजबूती के साथ पहाड़ों के ऊपर, वादियों के दरमियान, दरियाओं के साथ हरकत कर रहे हैं।
ये कदम बूढ़ों के भी है, नौजवानों के भी है और बच्चों के भी है। मंजिल मुझे मिले न मिले मुझे इसका गम नहीं, मंजिल मुझे मिले न मिले मुझे इसका गम नहीं, मंजिल की जस्तजू में मेरा कारवां तू है। ऐ मादरे वतन तू न तूफान गम से डर, ऐ मादरे राजनू में कितने चले चल के मिट गए, राजनू में कितने चले चल के मिट गए, बाकी जहां में उनका नाम निशान तू है। रियासत की जबरी तकसीम की अलामत को मिटा देंगे। रियासत जम्मू और कश्मीर के अवाम का कौमी फरीदा है कि वादत कश्मीर का परचम बुलंद करते हुए तकसीम कश्मीर की अलामत सीज पार लाज को मिटाकर अब तक कोई आजादी की जिद्दोजहद की क़यादत और अपनी किस्मत के आप मालिक